Hello students, my name is Dr. Yatanjeet Kaur and today we're going to discuss about renal pathologies. So renal pathologies generally हमने classify की है on the basis कि कौन सा structure damage है. अगर तो अब देखो दो structures होते हैं mainly यहाँ पे जो damage हो सकते हैं. One is the glomerular injury due to glomerular injury. And second, renal pathologies due to tubular or you can say interstitium injury. Okay, now see, glomerular injury में what you wanna find is two things are present. पहली क्या होगी? प्रोटीनयूरिया आपको देखने को मिलेगा, प्रोटीनयूरिया. And secondly, you can see hematuria. Before going into detail what is proteinuria and what is hematuria, first you have to know what is the normal function of glomerulus. So, function of glomerulus. सो क्या क्या फंक्शन है ग्लोमेरुलस के? पहला, ये जो ग्लोमेरुलस होता है ना, ये क्या करता है? ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करवाता है. किन किन की? पानी की, आरबीसीज की, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट्स है, ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड है, उसकी ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करवाएगा एंड देन दे विल गो इनटू बोमेन्स कैप्सूल. सो फर्स्ट द फंक्शन ऑफ ग्लोमेरुलस इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन of water, electrolytes, amino acids into Bowman's capsule. अब सेकेंड फंक्शन इसका क्या है? जनरली जो हमारा ग्लोमेरुलस है ना, वो प्रोटीन की फिल्ट्रेशन नहीं होने देगा. इट प्रिवेंट्स फिल्ट्रेशन ऑफ प्रोटीन्स. थर्ड, दिस ग्लोमेरुलस ऑल्सो प्रिवेंट फिल्ट्रेशन ऑफ आरबीसीज. नॉर्मली हमारे यूरिन में 3 से 5 आरबीसीज अगर हैं तो दैट इज़ नॉर्मल, बट अगर उससे ज़्यादा हैं तो दैट इज़ पैथोलॉजिकल. और वो ज़्यादा आरबीसीज क्यों नहीं आते? बिकॉज ऑफ दिस ग्लोमेरुलस. ग्लोमेरुलस आरबीसी को बाहर जाने ही नहीं देता. नाउ सी, one thing you need to know here, that is glomerular filtration barrier. Glomerular filtration barrier. अब देखो ये क्या है? This is I am drawing the capillary. ये हमारी कैपिलरी है. Now this capillary is lined by the endothelial cells. इसमें क्या है? This is the endothelial cells of the capillary. These are what? Capillary endothelium. And after this capillary, what is present? ये ब्लू कलर में जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ, this one is the basement membrane. This is what? This is the basement membrane. And basement membrane के बाद ये पिंक कलर में जो स्ट्रक्चर्स में ड्रॉ कर रही हूँ, these are what? These are the podocytes.
These are पोडोसाइट्स. पोडोसाइट्स को हम एक और नाम भी देते हैं. दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज एपिथीलियम. इनको एपिथीलियम या एपिथीलियल सेल्स भी कहते हैं. ठीक है. नाउ दिस इज व्हाट? दिस इज द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बैरियर. यहाँ से कोई भी सब्सटेंस आ रहा है, इफ देयर इज एनीथिंग इज कमिंग हियर, दिस विल गेट फिल्टर्ड आउट एंड जो भी चीज होगी यहाँ से फिर कहाँ जाएगी? बोमेन स्पेस में. दिस इज व्हाट? दिस इज द बोमेन स्पेस. दिस इज बोमेन स्पेस. ओके. कोई भी चीज यहाँ से फिल्टर आउट होके बोमेन स्पेस में आएगी. नाउ सी, आपको पता है कि हमारी बॉडी में प्रोटीन्स होते हैं और मोस्ट प्रिडोमिनेंट प्रोटीन हमारी बॉडी में क्या है? मोस्ट प्रिडोमिनेंट प्रोटीन इन आवर बॉडी इज एल्ब्यूमिन. एल्ब्यूमिन इज द मोस्ट abundant protein. Now this albumin generally, right, it is the most abundant protein in blood, and this albumin is negatively charged. This is what? This is negatively charged. And the glomerular basement membrane, this is also negatively charged. This is what? This is albumin. I told you this is negatively charged, as well as this glomerular basement membrane is also negatively charged. When this albumin will try to cross this barrier, then what is gonna happen? This won't be able to cross this barrier. Why? Because you know opposite charges repel each other. This glomerular basement membrane will repel the albumin, and hence there is no albumin in the Bowman's capsule, or you can say in the urine. So, right, this negatively charged albumin got repelled by glomerular basement membrane, and that's why you normally हमारे यूरिन में प्रोटीन्स नहीं प्रेजेंट होते. Now we'll talk about glomerular diseases. Glomerular diseases. अब ग्लोमेरुलर डिजीजेज में क्या होता है मेनली? सी, हमने यहाँ पढ़ा दिस इज व्हाट? दिस इज आवर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बैरियर. अगर इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बैरियर में कोई भी डैमेज है या कोई भी डिस्ट्रक्शन होती है तो क्या होगा? ऑब्वियसली ये जो नॉर्मली फिल्ट्रेशन अच्छे से हो रही थी वो नहीं हो पाएगी. और आपको पता है नॉर्मली हमारे यूरिन में मैंने बताया ना तो आरबीसीज होते हैं ना प्रोटीन्स होते हैं, बट अगर ये बैरियर डिस्ट्रॉय हो जाए तो क्या होगा? आपको यूरिन में आरबीसीज भी देखने को मिलेंगे और प्रोटीन्स भी. तो दिस इज नॉट नॉर्मल ना. अब सी व्हाट इज हैपनिंग इन ग्लोमेरुलर डिजीजेस. देयर इज अ डैमेज ऑफ glomerular filtration barrier, and due to this you're gonna see what? Hematuria as well as proteinuria. They are not present. But in case of the damage you're gonna see these two things. Now we'll discuss about hematuria first. Hematuria क्या है? फर्स्ट तो इसकी डेफिनेशन, दैट इज आरबीसीज इन द यूरिन इज कॉल्ड एज हेमेचूरिया. सो आरबीसी इन यूरिन. नाउ दिस हेमेचूरिया इन मोस्ट ऑफ द ग्लोमेरुलर डिजीजेस, आपको जो सबसे ज़्यादा कॉमनेस्ट फाइंडिंग देखने को मिलेगी ना, दैट इज हेमेचूरिया. सो इट इज़ द मोस्ट कॉमन फाइंडिंग in glomerular diseases. Okay, now see how you gonna detect hematuria. Now
For detection of hematuria, generally there are two methods. What are those methods? First, you can do the dipstick test. And second, what you can do? That is the microscopy. Microscopy of urine. Okay. So with the urine analysis, डिटेक्ट हीमेचूरिया. और यूरिन एनालिसिस आप कैसे कर सकते हो? दो मेथड से. वन इज द डिपस्टिक मेथड एंड अदर इज व्हाट? दैट इज द माइक्रोस्कोपी. नाउ डिपस्टिक मेथड में हाउ यू गोना डिटेक्ट हीमेचूरिया? सी, हम डिपस्टिक में क्या करते हैं? वी डिटेक्ट हीम. इट इज अ टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ हीम. अब जनरली जो हीम होती है ना, दिस हीम contain one enzyme, that is, this heme has what? That is peroxidase. अब ये peroxidase क्या करेगा? Because of this peroxidase activity, what you gonna see? There will be color change on dipstick, or this heme will react with the strip, and you can clearly diagnose whether the RBCs are there in the urine or not. Okay, ये एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस एंजाइम की वजह से ही आप डिपस्टिक पे हीमेचूरिया डिटेक्ट कर पा रहे हो. अगर ये नहीं होता तो यू आर नॉट एबल टू डिटेक्ट दैट आरबीसीज. नाउ माइक्रोस्कोपी पे कैसे कर सकते हो? माइक्रोस्कोपिक पे व्हेन यू डू द यूरिन एनालिसिस, व्हाट यू गोना सी? यू गोना सी द रेड ब्लड सेल्स. Red blood cells are visualized on microscopy. Okay. Now, generally हेमेचूरिया दो टाइप का होता है. हेमेचूरिया कितने टाइप का होता है? दो टाइप का. फर्स्ट इज द ग्रॉस हेमेचूरिया. ग्रॉस हेमेचूरिया मीन्स जब आप यूरिन देखो तो यू कैन डायरेक्टली सी दैट रेड कलर, and that red color is because of what? That is because of RBCs. That is called as gross hematuria. And this gross is what? Abnormal, obviously. And second one is the microscopic. Microscopic, abhi we have discussed now. On urine analysis, you can see on the microscope there is a presence of RBCs. So two type of hematuria is there. Now what are the causes? Why this hematuria is occurring? So causes, see, we said that in glomerular diseases you gonna see what? Hematuria. But if we are discussing the cause of hematuria, so जो glomerular diseases होती है ना, they are the rare cause. They are the rarest cause of hematuria. But glomerular diseases में most common finding क्या है? That is hematuria. Just कोरिलेट दो कंसेप्ट में जो बता रही हूँ. पहला मैंने बोला कि अगर आपको हीमेट्यूरिया के कॉज की बात करें तो जो ग्लोमेरुलर डिजीजेज हैं वो रेयरेस्ट कॉज है. ग्लोमेरुलर डिजीजेज की वजह से जो हीमेट्यूरिया है वो बहुत रेयर है. दूसरा मैंने बोला कि ग्लोमेरुलर डिजीजेज में जो बहुत इंपॉर्टेंट या मोस्ट कॉमनेस्ट फाइंडिंग देखने को मिलेगी, दैट इज हीमेट्यूरिया. सो दीज आर टू डिफरेंट सेपरेट टर्म्स. नाउ सी, कॉज में we told glomerular diseases, but this is a rarest cause. Second cause क्या है यहाँ पे? That is the heavy workout, heavy exercise. Heavy exercise के बाद this hematuria can occur. Okay. Third cause is urinary tract infection. Fourth is renal stones. This urinary tract infection and renal stones are the most common cause of hematuria. So this is a common cause. Then next cause is what? That is hematuria because of the bladder cancer.
Now, this is the most feared complication or it is a feared cause. जब भी हेमेट्यूरिया बिकॉज ऑफ ब्लैडर कैंसर है ना, तो जनरली इट्स लाइक अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग. So these are the causes of hematuria. Now, glomerular bleeding. So glomerular bleeding जब होती है तो you gonna see one thing, and that is the hallmark feature of this glomerular bleeding. So what is the hallmark feature? That is presence of red cell cast. This red cell cast is the hallmark feature of glomerular bleed. अब इस red cell cast में you gonna see what? RBC. रेड कलर क्यों है कास्ट का? बिकॉज ऑफ द रेड ब्लड सेल्स. बट यहाँ जो रेड ब्लड सेल्स है ना, दे आर नॉट नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स. दीज आर द डिस्मॉर्फिक रेड ब्लड सेल्स. डिस्मॉर्फिक RBCs will be present. डिस्मॉर्फिक का मतलब क्या है? इन RBCs की जो शेप है ना, वो नॉर्मल नहीं होगी. वो क्या होगी बेटा? दैट इज एबनॉर्मल. एबनॉर्मल शेप ऑफ RBC. What else you gonna see? You gonna see acanthocytes. Acanthocytes. And what are these acanthocytes? See, this is our normal RBC. ये जो सर्कल में मैं ड्रॉ कर रही हूँ, this is a normal RBC. But acanthocytes कैसे होंगे? These are acanthocytes. These are also RBCs, but यहाँ पे जो इनकी membrane होगी ना, they will turn into spikes. Spikes बन जाएंगी membrane की. I will like to show you the image. So see, this is the image of acanthocytes. Can you see clearly here? The spikes on the RBC's membrane. This is what? These are the acanthocytes. Acanthocytes. और ये जो हैं, these are what? These are our normal RBCs. Now, see, this RBC cast, this red cell cast, along with the proteinuria, red cell cast along with proteinuria, जब ये यूरिन में आएंगे ना, दोनों कास्ट और प्रोटीन्स दोनों जब यूरिन में आएंगे, तो यूरिन का एक पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक होगा. वो क्या है? ये यूरिन जो होगा वो रेड स्मोकी कलर का होगा. इट इज रेड स्मोकी इन कलर. और इसको यू कैन डिस्क्राइब एज कोला कलर्ड यूरिन. कोला colored urine. Okay, so they can ask you where you gonna see the red smoky urine or cola colored urine. That is, your answer must be in case of glomerular diseases, we see this particular characteristic of the urine. Now we will discuss about proteinuria. Proteinuria. Normally I have told you proteins urine में नहीं आते, but here you gonna see proteins in the urine. This is the presence of proteins in urine. Okay, now for the detection of proteinuria, for detection of proteinuria,
what we gonna do? How you gonna confirm whether the proteins are present in urine or not? For that, we do some test. The first test we gonna use here, that is the dipstick test. Dipstick test. Now, on dipstick test, what you gonna see? जब आप देखोगे जो स्ट्रिप होती है ना डिपस्टिक टेस्ट के लिए जो हम यूज़ करते हैं, ऑन कमिंग इन द कॉन्टैक्ट विद द यूरिन दैट कॉन्टेन प्रोटीन्स, जो स्ट्रिप है वो अपना कलर चेंज कर लेगी. देयर इज अ कलर चेंज एंड दिस कलर चेंज इंडिकेट्स व्हाट? दिस कलर चेंज इंडिकेट्स अमाउंट ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट इन यूरिन. ओके, नाउ प्राइमरली ये जो डिपस्टिक टेस्ट है हम किसके लिए करते हैं? दैट इज मेनली फॉर द एल्ब्यूमिन. इट इज प्राइमरली टू डिटेक्ट एल्ब्यूमिन. ओके, नाउ वी डिस्क्राइब प्रोटीनयूरिया ऑन डिपस्टिक एज, जनरली आपने देखा होगा ना, जब भी हम डिजीज़ या कोई भी आप अगर डायग्नोसिस के लिए जाओ, तो अगर ग्लोमेरुलर पैथोलॉजीज के डायग्नोसिस की बात करें तो वहाँ पे लिखा होता है 1+, 2+, 3+, 4+. इवन आपने क्लिनिकल विग्निटीज़ वाले क्वेश्चन में भी पढ़ा होगा कि दे मेंशन प्रोटीन यूरिया ऑफ 4+ डिग्री इज़ देयर. सो व्हाट डज दिस इंडिकेट? दिस इंडिकेट हाउ सीवियर proteinuria is. Okay, so generally in case of glomerular diseases ना, glomerular diseases के केस में you gonna see 4+ proteinuria. नॉर्मली बहुत ज़्यादा प्रोटीनयूरिया होता है ग्लोमेरुलर डिजीजेस के केस में. Now, second test that you gonna use for the detection of proteins in urine, that is the urine proteins to creatinine ratio. Urine protein to creatinine ratio. Okay? Generally इसको हम एक और नाम भी देते हैं, we called it as a spot urine. स्पॉट यूरिन बोलते हैं इसको. सो यहाँ पे आप क्या करोगे? आप पेशेंट को बोलोगे अपना मॉर्निंग में जो फर्स्ट या सेकंड यूरिन आता है ना, उसको वो वाला सैंपल लेना है उसने. ठीक है, आफ्टर दैट यू विल चेक दिस यूरिन प्रोटीन टू क्रिएटिनिन रेशियो. ठीक है, अगर तो ये नॉर्मल वैल्यू क्या होगी? अब इसकी नॉर्मल जो रेशियो होगी, normal ratio will be less than 0.2 mg. Normal ratio will be less than 0.2. But अगर इससे ज़्यादा है then it is what? Abnormal case. Proteins present है urine में. Third test that you can do here for the protein detection in the urine, that is the 24-hour urine collection. 24 hours urine collection. That is 24 hours urine collection you can do. This is the gold standard for protein evaluation. This is what? Gold standard for protein evaluation. Okay? And नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मली कितना प्रोटीन पर डे रिलीज होगा? सी, नॉर्मल वैल्यू जो है दैट इज लेस देन 150 mg पर डे. इतना प्रोटीन मतलब 150 से जो लेवल है प्रोटीन का डेली हमारे यूरिन में निकलता है. बट अगर इससे ज़्यादा है प्रोटीन्स एक्सक्रीशन, तो दिस इज व्हाट? दिस इज अ केस ऑफ प्रोटीनयूरिया एंड मोस्ट प्रोबेबली ग्लोमेरुलर डिजीजेस का केस है. नाउ जो ग्लोमेरुलर डिजीजेस है ना, हमने इनको 2 टाइप्स में क्लासिफाई किया है. ग्लोमेरुलर डिजीजेस
are of two types. What are those two types? First is nephrotic syndrome and other is nephritic syndrome. अब ये नेफ्रोटिक और नेफ्रिटिक है क्या? See, in case of nephrotic, what you gonna see? नेफ्रोटिक में क्या आ रहा है? नेफ्रोटिक में आ रहा है O. देखो नेफ्रोटिक में क्या आ रहा है? O आ रहा है. और प्रोटीन्स में क्या आता है? अगर हम प्रोटीन्स की बात करें, ये प्रोटीन है और प्रोटीन्स में भी O आ रहा है. तो आपने याद रखना है कि नेफ्रोटिक में मेनली प्रोटीन्स का लॉस होता है. देयर इज मैसिव, दिस प्रोटीनूरिया is massive, more than 3.5 grams per day protein loss is there in case of nephrotic syndrome. Second thing, because protein loss ज़्यादा है, तो अगर प्रोटीन लॉस ज़्यादा होगा तो बॉडी क्या बोलेगी? प्रोटीन कहाँ बनते हैं? लिवर में. तो प्रोटीन ज़्यादा एक्सक्रीट हो रहे हैं, अब बॉडी को तो प्रोटीन्स चाहिए. अब बॉडी क्या बोलेगी लिवर को? लिवर प्लीज प्रोटीन बनाओ ना ज़्यादा. अब लिवर क्या होगा? ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगा. दिस प्रोटीन डिक्रीज प्रोटीन लेवल will leads to more activation of liver and liver क्या करेगा? लिवर प्रोटीन तो चलो बनाएगा बट ऑब्वियसली इतने नहीं बना सकता बिकॉज जो भी वो प्रोटीन्स बनाएगा स्टिल दे आर गोना बी एक्सक्रीटेड आउट फ्रॉम द यूरिन. बट प्रोटीन के साथ और भी क्या बनाता है लिवर? दैट इज लिपिड्स. तो ज़्यादा लिवर स्टिमुलेट होगा तो हाइपरलिपिडीमिया आपको देखने को मिलेगा. Hyperlipidemia is there. Now in case of nephritic syndrome, what you gonna see? Nephritic के केस में जर्नली आपको RBC कास्ट देखने को मिलेगा. ठीक है, यहाँ पे क्या मेन कंप्लेंट होगी? हिमेटूरिया मेन कंप्लेंट कहाँ पे होगी? नेफ्रिटिक में हिमेटूरिया ज़्यादा होगा, प्रोटीनूरिया नहीं होगा ज़्यादा, हिमेटूरिया ज़्यादा होगा. नाउ यहाँ पे प्रोटीनूरिया होगा बट इट इज़ वेरी माइल्ड प्रोटीनूरिया होगा बट इट इज़ अ माइल्ड वैरायटी ऑफ प्रोटीनूरिया और यू कैन से लेस देन 3.5 ग्राम्स प्रोटीन्स पर डे एक्सक्रीट हो रहे हैं. Got it? Now, nephritic के केस में this can leads to renal failure. So now you got it. What are the basic difference? आपको एक आइडिया देना था मुझे कि एक्चुअली नेफ्रोटिक और नेफ्रिटिक में क्या डिफरेंस है.